Dear students, in our previous lectures, we had already studied about digestive glands. We know that those glands which are associated with the alimentary canal, those glands are called as digestive glands, and these digestive glands secrete certain enzymes which help in digestion. And we know that digestion means conversion of complex molecules into simpler ones. Now, so far in our classroom, we have studied salivary gland as well as gastric glands. So, I am gonna revise both of these two in a quick uh, recap. These are your salivary glands, among which the largest one is this one, which is called as parotid, located on your cheek side. At the jaws over here, the gland which is present is called as submandibular, and below the tongue there is sublingual. In 10th class, you don't need to remember the names of these glands. Just remember we have three pairs. We have three pairs of salivary glands. You just need to remember this. We have three pairs of salivary glands, and collectively all of these glands, they secrete a secretion which is known as saliva. Their secretion is collectively known as saliva. Okay, and possesses this saliva is a watery fluid, right? It possesses so many things, but one thing which you need to remember is that it possesses this important enzyme called as salivary amylase. So when we eat a carbohydrate like chips, rice, bread और पोटैटो से ही तो चिप्स बनाए जाते हैं, राइट? तो इन सब में दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ स्टार्च. तो saliva possesses this salivary amylase which will convert starch into maltose, and the saliva works in this pH 6.8. And when you start swallowing the food from the mouth till the esophagus, about 30% of the when this food goes through from mouth to the stomach, till then 30% of the starch is being digested by the salivary amylase. And in this diagram I have shown over here, this is a starch which is a complex molecule made up of thousands of glucose molecules. So salivary amylase will break it into simple molecules where still two glucose molecules will be connected together, and this 2 glucose molecule substance is called as maltose. That means there is still a possibility that we can break it down, and if we will break it maltose further, it will yield glucose. But that's going to happen later on. Right now the product in front of us is maltose. So who has converted starch into maltose? It is salivary amylase. And how much starch will get converted? Only 30%. Only 30%. Now from mouth, this food will enter into the stomach through esophagus. Inside the esophagus there aren't any glands present. So in your stomach, the wall of a stomach, the glands which are present in the wall of a stomach are known as gastric glands, because the term gastric refers to stomach. Those gastric glands secrete gastric juice. And gastric juice, according to your 10th class textbook, you have to remember three names. One is hydrochloric acid. Gastric juice possesses three things. One is hydrochloric acid, another is an enzyme, protein digesting enzyme, which is called as pepsinogen, and third substance released by the gastric glands is mucus. So one is HCl, another is pepsinogen, and third substance which is a component of gastric juice is mucus. So first, second and third. Now what usually is happening over here, this pepsinogen has been released, but it is released in inactive form. So what does this HCl do? First, it creates an acidic environment inside the stomach,
And that acidic environment is very important. Why? Because it will convert this inactive enzyme into active form. The inactive's name was pepsinogen, and active form of this enzyme is pepsin. And before HCl will be secreted, there will be a thick layer of mucus surrounding the walls of the stomach, which will protect your wall of the stomach from the harmful action of HCl. Otherwise, this HCl can damage the walls of the stomach. That's why, to protect the walls of the stomach, mucus will be released. And this mucus will protect the walls of the stomach from the action of HCl. Okay, this is the function of mucus. And one more important function of HCl is, when we eat the food, once that food enters into the stomach, there are so many bacteria associated with that food. So HCl kills all those microorganisms which enter our stomach along with food. Got it? So in nutshell, I told you that gastric glands comes at second number. They secrete gastric juice, and in gastric juice one of the component was HCl, second was mucus, and third was pepsinogen. Once this pepsinogen got converted to pepsin with the help of HCl, now what will that pepsin do? It will start digesting proteins. Let us suppose this is a protein. Okay, so pepsin will act on this protein and will create some bigger chains and some smaller chains. These bigger chains are known as peptones, and these bigger chains are known as peptones, and these smaller chains are known as proteases. एक बड़ी प्रोटीन चेन के छोटे छोटे टुकड़े होंगे, उनको प्रोटियोसिस कहते हैं, और बड़े बड़े टुकड़े होंगे, उनको पेप्टोन्स कहते हैं. तो आपके स्टमक में सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की डाइजेशन हो रही है, फैट और स्टार्च की डाइजेशन नहीं होती. ख़त्म. इतना ही डाइजेशन स्टमक में होता है. अब जो खाना स्टमक से निकल के स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट, ये सी शेपेड पार्ट जो है, सी शेपेड पार्ट, इसी का नाम ड्यूडेनम है. राइट, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड एज ड्यूडेनम. ये है ड्यूडेनम, यहाँ से यहाँ. ठीक है, तो ये ड्यूडेनम में दो ग्लैंड्स की सिक्रीशंस आती है. एक यहाँ पे होता है लीफ शेपेड ग्लैंड जिसका नाम है पैनक्रियास, और यहाँ पे होता है लिवर. ठीक है, तो एक लोब यहाँ तक, तो दोनों लोब से डक्ट्स आती है, और वो डक्ट से बाइल जूस आता है, और वो बाइल जूस इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर में स्टोर होता है जिसका नाम गॉल ब्लेडर है. फिर वो पाइप ज्वाइन होके और वहाँ से पीछे से होके इस पैनक्रियाज की इस डक्ट के साथ फ्यूज़ होती है, और ये दोनों डक्ट्स होके एंटर होती है ड्यूडेनम में. इसका मतलब ड्यूडेनम इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन which is receiving secretions from two glands. One is pancreas, another is liver. Now we have to see what was being secreted by gastric glands. We covered that. Now we have to focus on liver and pancreas. See, this is the diagram for liver. So this is one lobe of liver, this is another lobe. Through both lobes, bile juice is being secreted, and that bile juice gets stored in this pouch like structure which is called as gallbladder. Then once the food which was present in the stomach with which HCl has got mixed, that food is called as chyme, chyme. That acidic food comes out of stomach into the small intestine's first part, that is duodenum. Now as that food is acidic, it can damage the walls of the intestine. That's why liver will secrete. Here also there will be mucus. Mucus will protect the wall of the intestine also. But after that, what will happen? The liver gallbladder will contract and bile juice will get released, which will enter into the duodenum through this way. And that bile juice is basic in nature, alkaline in nature. It will react with the acidic food and neutralize it. Right, and somehow it will create, as more and more bile juice will get added, it will create an alkaline environment over here, a basic environment over here.
Liver secretes bile juice. So bile juice is performing two functions. One, it is making the food alkaline so that pancreatic enzymes can act on it now. Because pancreatic enzymes like to work, they like to act in which type of medium? They prefer alkaline medium, basic medium. और दूसरा बाइल जूस क्या करता है? इमल्सिफिकेशन करवाता है फैट्स की. इमल्सिफिकेशन क्या होता है कि जब आप किसी बड़े फैट के मॉलिक्यूल के ऊपर बाइल जूस डालोगे तो इस बड़े फैट के मॉलिक्यूल के छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, स्मॉल ड्रॉपलेट्स हो जाएंगे. लेकिन ये भी फैट था और ये भी फैट है, तो ये मैकेनिकल डाइजेशन है, केमिकल डाइजेशन नहीं है, क्योंकि बड़े फैट मॉलिक्यूल छोटे छोटे फैट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गए. So this process is called as emulsification. That means breaking down large fat molecules into the smaller ones. And this process is called emulsification. And this emulsification is performed by bile juice, which is a greenish yellow liquid. And bile juice comprises of two components. One is bile pigment, जिनका digestion में कोई role नहीं है, और दूसरा है bile salts. तो आप 10th क्लास में इन बाइल सॉल्ट्स का नाम नहीं याद रखोगे, अब बस याद रखो बाइल जूस में दो कंपोनेंट्स होते हैं, बाइल सॉल्ट और बाइल जूस. और ये बाइल सॉल्ट ही है जो उस फैट की इमल्सिफिकेशन करवाता है. सो इफ दिस क्वेश्चन विल अराइज, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल जूस? ओनली टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नीड टू बी मेंशन्ड. फर्स्ट, बाइल जूस मेक्स द फूड अल्कलाइन. एंड सेकेंड, बाइल जूस कॉजेज द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स. बस यहीं पे बात ख़त्म. मैं एक क्विक रिव्यू आपको देता हूँ इसका. लिवर सिक्रीट्स बाइल जूस. बाइल जूस इज एंटरिंग इनटू द ड्यूडेनम. फर्स्ट इट गेट्स स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर. वंस द फूड एंटर्स फ्रॉम स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट्स and large amount of bile juice is being released into the small intestine. And that bile juice performs only two important functions. First, it makes the food alkaline, and second, it causes emulsification of fats, which means breakdown of large fat molecule into smaller droplets. उसी को बेटा emulsification कहते हैं. हो गया बाइल जूस भी ख़त्म, हो गया लिवर का काम भी ख़त्म. अब आपके पास एक दूसरा ग्लैंड है, लीफ शेप्ड ग्लैंड यहाँ पे, जो स्टमक के नीचे होता है और इस सी शेप्ड कर्व में लोकेटेड होता है, जिसका नाम पैनक्रियाज है. और ये पैनक्रियाज सिक्रीट करता है पैनक्रियाटिक जूस. और पैनक्रियाटिक जूस के बेटा तीन ही कंपोनेंट्स आपको याद रखने हैं. एक है पैनक्रियाटिक एमाइलेस, अगर आपको याद हो सेलेवरी एमाइलेस, तो ये भी एमाइलेस है. दूसरा है ट्रिप्सिन और तीसरा है लाइपेस. पैनक्रियाटिक एमाइलेस क्या करेगा? वो जो 70% स्टार्च बचा हुआ था, उस स्टार्च को माल्टोस में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि 30% तो सलेवरी एमाइलेस ने किया था, तो 70% विल बी कन्वर्टेड बाय माल्टोस, बाय दिस पैनक्रियाटिक एमाइलेस, विच इज अ कंपोनेंट ऑफ पैनक्रियाटिक जूस. एंड सेकेंड एंजाइम निकलता है ट्रिप्सिनोजेन. वो इनएक्टिव फॉर्म में निकलता है, लेकिन बाद में वो ट्रिप्सिनोजेन ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है. तो आपको 10th क्लास में उसका कोई मेंशन नहीं है, इसीलिए हम सीधे ट्रिप्सिन याद नाम रखेंगे. तो ट्रिप्सिन क्या करता है? ये पेप्सिन की तरह ही, क्योंकि पेप्सिन ने प्रोटीन को इसमें और इसमें कन्वर्ट किया था, तो ट्रिप्सिन इन दोनों को इसमें कन्वर्ट करेगा, डाइपेप्टाइड में. डाइपेप्टाइड क्या होता है? एक ऐसा मॉलिक्यूल जहाँ पे दो अमीनो एसिड अभी भी आपस में जुड़े हैं, यानी कि इसमें अभी भी पॉसिबिलिटी है कि इसको सिंपल में कन्वर्ट किया जा सकता है, कि अगर इसका ये बॉन्ड ब्रेक किया जाए तो अमीनो एसिड्स अलग हो जाएंगे. तो डाइपेप्टाइड इज द नेम ऑफ द सब्सटेंस वेयर टू अमीनो एसिड्स आर स्टिल जॉइंड टुगेदर. ओके, तो आप देख रहे हो ना, प्रोटीन पहले पेप्टाइड में कन्वर्ट हो गया, अब आगे जाके ये पेप्टाइड जो है डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो गए, अब फ्यूचर में डाइपेप्टाइड अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा. और आखिर में जब छोटे छोटे जो फैट ड्रॉपलेट्स थे, लाइपेस उन छोटे छोटे फैट ड्रॉपलेट्स को फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट करेगा. क्लियर? और ये रहा आपका पैनक्रियाज. यू डोंट नीड टू रिमेंबर हेड, नेक वगैरह, यू डोंट नीड टू रिमेंबर. ओके, तो पैनक्रियाज एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड है. इसका मतलब ये अपनी कुछ सिक्रीशंस ब्लड में देता है,
जैसे कि पैनक्रियाज इंसुलिन सिक्रीट करता है, तो इंसुलिन इज बीइंग गिवन बाय पैनक्रियाज डायरेक्टली इनटू द ब्लड, एंड पैनक्रियाटिक जूस डक्ट के जरिए ड्यूडेनम में डालता है। तो जो ग्लैंड दोनों तरह के काम करता है, डक्ट के बगैर भी सिक्रीशन देता है और डक्ट के अंदर भी सिक्रीशन देता है, उसी ग्लैंड को हम हीटेरोक्राइन कहते हैं। क्लियर? सो हो गया आपका पैनक्रियाज का भी काम। तो फाइनली अगर मैं इसका भी थोड़ा आपको रिवाइज करूं कि पैनक्रियाज क्या है, एक लीफ शेप्ड ग्लैंड है जो स्टमक के नीचे इस सी शेप्ड कर्व में प्रेजेंट है, और पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है। और पैनक्रियाटिक जूस के 3 कंपोनेंट्स आपको 10th में याद रखो, पैनक्रियाटिक अमाइलेस, ट्रिप्सिन और लाइपेस। पैनक्रियाटिक अमाइलेस स्टार्च को माल्टोस में कन्वर्ट करता है, ट्रिप्सिन पेप्टोन को और प्रोटीएसेस को डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है, और लाइपेस उन छोटे छोटे फैट ड्रॉपलेट्स को फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट करता है। हो गया लिवर भी कवर, हो गया पैनक्रियाज भी कवर, और आखिरी ग्लैंड जो बेटा है वो है इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अपने कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, और इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो सिक्रीट करते हैं उसमें बहुत सारे एंजाइम्स हैं, और उन सारे एंजाइम्स को कलेक्टिवली हम कहते हैं इंटेस्टाइनल जूस, जिसका दूसरा नाम है सक्कस एंटेरिकस। और इसमें बेटा बहुत सारे एंजाइम्स हैं, but we don't need to remember that all those enzymes at 10th level. What we need to remember, all those enzymes which are present in intestinal juice, they will convert finally जो प्रोटीन का बचा हुआ फॉर्म है उसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट करेगा, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, बचा हुआ कार्बोहाइड्रेट जो है, और फैट्स का फाइनल ब्रेकडाउन फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल में होगा। दैट मीन्स आपका फाइनली कार्बोहाइड्रेट वॉज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, फाइनली ये कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज में, और आपने जो प्रोटीन्स लिए थे वो फाइनली कन्वर्ट हो गए अमीनो एसिड्स में, और आपने जो फैट्स लिए थे वो कन्वर्ट हो गए फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल में। दीज आर द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स एंड दीज आर द सिंपल मॉलिक्यूल्स, और यही सिंपल मॉलिक्यूल स्मॉल इंटेस्टाइन में जब बन जाते हैं तो डाइजेशन कंप्लीट। इसीलिए स्मॉल इंटेस्टाइन ही ह्यूमन बींग्स में वो जगह है जहां डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है। अब ज़रूरत क्या है, इन मॉलिक्यूल्स को ब्लड के अंदर पहुंचाने की, उसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ मैंने एक बात एक्स्ट्रा लिख दी है जो आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, अगर आपको समझ आए ठीक। देखिए, जब ये छोटे छोटे टुकड़े हो गए उसमें फैटी एसिड, कोलेस्ट्रॉल और ग्लाइसरॉल, ये सिंपल मॉलिक्यूल तो बन गया। अल्लाहु अकबर। ये सिंपल मॉलिक्यूल तो बन गया, लेकिन इस सिंपल मॉलिक्यूल के साइज अभी भी बड़े होंगे इन तीनों के, इसीलिए इनको ब्लड में डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता, इनको लिम्फ वेसल्स में एब्जॉर्ब किया जाएगा, लिम्फ कैपिलरीज में। जबकि वाटर, मिनरल, शुगर यानी ग्लूकोज और अमीनो एसिड वो बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल होंगे, सो दे विल बी एब्जॉर्ब डायरेक्टली इनटू द ब्लड कैपिलरीज, और फिर ब्लड के साथ ये न्यूट्रिएंट्स बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में जाएंगे। आई विल शो यू द पिक ऑफ इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के अंदर से देखो ये छोटे छोटे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहे हैं ना, ये इंटेस्टाइन का होल है। इसी इंटेस्टाइन के हर जगह साइड से आपको फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, दे आर कॉल्ड एज विल्लाई। और एक विल्लाई को जूम करके हम जब देखते हैं, देखो ये आपकी इंटेस्टाइन की अंदर की सरफेस है, और यहाँ पे ग्लूकोज था, यहाँ अमीनो एसिड थे, यहाँ फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल था, यहाँ कोलेस्ट्रॉल था। तो कोलेस्ट्रॉल इसमें जाएगा, ये लिम्फ की वेसल में, जो ये ग्रीन कलर की आपको दिख रही है, क्योंकि लिम्फ वेसल का जो पोर्स होते हैं उनका साइज बड़ा होता है, तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल यहाँ से यहाँ जाएगा, जबकि अमीनो एसिड और ग्लूकोज डायरेक्टली ब्लड कैपिलरी में एंटर होंगे। ठीक है। सो अब क्वेश्चन एक लास्ट बुक में बना है कि जब आपके सारी डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाती है, तो आखिर स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या ऐसे स्पेशल फीचर्स है जिससे वहाँ पे डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो जाती है। पहला, स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज यानी लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, कितना, 6.5 मीटर। और स्मॉल इंटेस्टाइन को अगर हम देखें, जैसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इट इज़ नॉट लाइक स्ट्रेट पाथ,
इट इज़ लाइक दिस, ठीक है। आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में अंदर से इसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स है विच आर कॉल्ड एज विलाई। इसका मतलब मॉलिक्यूल हैज़ टू गो लाइक दिस, सम मॉलिक्यूल विल गेट एब्जॉर्ब्ड हियर, सम विल गेट एब्जॉर्ब्ड हियर, सम हियर। इस तरह से ये मॉलिक्यूल्स डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे एब्जॉर्ब हो जाएंगे और इनके अंदर से ब्लड वेसल्स चल रही होती है, लिम्फ कैपिलरीज चल रही होती है, जिसकी वजह से वो सिंपल मॉलिक्यूल्स उनके अंदर एंटर होते हैं और फिर ब्लड के साथ बॉडी के हर एक ऑर्गन तक पहुंचते हैं, ठीक है। और अगर इस विलाई को भी जूम करें ना हम, इस विलाई को, जैसे एक विलाई को अगर मैं जूम करूं ऐसे, उस विलाई के ऊपर भी छोटे छोटे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको माइक्रो विलाई कहते हैं। और हर किसी विलाई के अंदर अंदर से एक लिम्फ कैपिलरी होती है, एक ब्लड यानी आर्टरी की कैपिलरी होती है और एक वीन की कैपिलरी होती है। तो जो मॉलिक्यूल्स होंगे सिंपल सिंपल वो इन्हीं ब्लड कैपिलरीज या लिम्फ कैपिलरीज में एंटर होंगे। इस तरह से जो जो मॉलिक्यूल्स लिम्फ में एंटर होंगे वो फाइनली ब्लड में ही पहुंच जाएंगे, क्योंकि लिम्फ भी आगे जाके उसको ड्रेन करती है ब्लड में, राइट। एंड वन important point is there from the textbook. As herbivorous animals need to eat grass, and grass contains one of the carbohydrate which is called as cellulose, it needs more time for digestion. That's why all the herbivores length of the small intestine in them will be much longer than ours, right? क्योंकि हम प्लांट फूड खाते तो है लेकिन हर्बीवोरस सिर्फ प्लांट फूड खाते हैं, इसलिए उनके स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ हमारे इंटेस्टाइन से ज़्यादा होगी। और कार्निवोरस एनिमल जैसे कि टाइगर जो है, उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ छोटी होगी क्योंकि मीट को डाइजेस्ट करना आसान है, इजी डाइजेशन है, वी हैव एंजाइम्स फॉर दैट। लेकिन इस सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए टाइम लगता है, दैट्स वाई हर्बीवोर्स की इंटेस्टाइन की लेंथ ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू द कार्निवोर्स। सो दिस कंप्लीट्स यूअर टॉपिक। इसको छोटा छोटा करना है और इसको पढ़ना है अपने टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 99 और 100। ये जो 2 पेजेस मैं बता रहा हूँ ये ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से आप देख लेना। इस साल न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स आपकी नई एनसीईआरटी पे किस पेज नंबर पे 99 या 100, बिकॉज थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन हुई है पेज नंबर्स में, तो प्लीज़ चेक दैट, राइट। सो ये चीज़ आप यहाँ पे कवर कर लोगे।